Hello, are you ready now for class? Hello. Hello. Yes, sir. Ready for class na? Okay. Yes, sir. Surface integral. Okay. Yes, sir. Last time we already discussed about line integral. Now surface integral. क्लियरली दिख रहा है ना? सरफेस इंटीग्रल है. हेलो. आज सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे है ना? ओके. So in the previous class we have seen the line integral. Okay. Line integral means integration along a curve in 3D space, maybe in 2D plane. Here surface integral. Generally surface integral, you know, plane surface having also surface. Curved surface is also surface. But in plane surface, just we are doing double integration. Okay. Curved surface, that is 3D में, if there is a surface in 3D, then over that surface we have to integrate a vector point function which is defined on that surface. Okay. So surface integration, generally surface integration is also extension of double integration over a curved surface. Okay, double integration जो करते हैं ना surface integral में भी वही है. दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होना है. Repeatedly we have to do integrate with two times, either xy, yz or zx. Okay, so surface integral means whenever we do integration of a vector point function over a surface called surface integral. Okay, definition is very simple, just like a definition of original definition, just like as a double integration. Here just see, surface integral means maybe curved surface, that is the main thing here. Okay, एक्चुअली क्या करते हैं सरफेस इंटीग्रल में भी ना 3D स्पेस में जो सरफेस है उस सरफेस का प्रोजेक्शन लेना है किसी ना किसी एक प्लेन पे. जस्ट लाइक 3D में जब लिमिट निकालते थे ना ट्रिपल इंटीग्रेशन में, उसी प्रोसेस में सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है. बिकॉज वॉल्यूम इंटीग्रल सिंपल है. Surface integral, here we are facing with unit vector outward to the surface. You know gradient. Anyone can say gradient? Gradient पढ़े ना पिछले सेमेस्टर में? याद करो. हेलो, कोई भी बताओ. Gradient. हेलो. Yes, sir. Gradient क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल फाई. डेल फाई हम लोग पढ़ते थे ना, डेल फाई. ये डेल फाई पढ़ के आए थे. व्हाट रिप्रेजेंट डेल फाई? फाई मींस व्हाट? देखो ये वाला चीज इसमें है. सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो जरूरत पड़ेगा. किस लिए जरूरत पड़ता है? सरफेस इंटीग्रल बहुत सिंपल है. आज 2-3 क्वेश्चन करेंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल है. 1 आवर में क्लास कंप्लीट भी हो जाएगा. बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है. बट ये जो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इन सब में सरफेस इंटीग्रल मेन है. सरफेस इंटीग्रल फाइंड करने में बहुत टाइम लगता है. ओके, बट सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड जो थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम, सो उसको भी यूज करेंगे यहाँ पर, है ना, तब जाकर वैल्यू आएगा. 3 थ्योरम्स आर देयर. एक ग्रीन्स थ्योरम हो गया, स्टोक्स थ्योरम आज बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. सो यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. ओके, बट मेन थिंग इज व्हाट? एवल्यूटिंग इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना ही तो मेन है. सो हियर सरफेस इंटीग्रल में एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है. सो इन द प्रीवियस सेमेस्टर we have seen that what represent this scalar point function, scalar quantity point function, but that is relation expression like in xyz. If this is equals to some constant, then what represent this? Surface in 3D. 3D में surface का equation क्या होता है? Function of x, y, z. Or you can suppose x, y, z. Relation between x, y, z equals to 0. This relation here, relation is what? Z equals to f x y.
जनरली यही रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, z इक्वल्स टू fxy। दिस इज सरफेस, सरफेस इन 3D, सरफेस, ये सरफेस होता है, सरफेस रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व सरफेस, एनी टाइप ऑफ सरफेस रिप्रेजेंट इन 3D, 3D स्पेस में सरफेस रिप्रेजेंट करता है ये। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू fxy means z is function of xy, but relation in xyz just transferring on one side, then you can get fxyz equals to 0, fxyz equals to 0. This is surface, represents surface in 3D space, also represents surface, this is surface, this is equal to some constant or may be taken as 0, so this is surface. So यहाँ पर जो राइट साइड में 0 करके इधर का जो क्वांटिटी होता है एक्सप्रेशन इन xyz, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ xyz। उस फंक्शन ऑफ, ये जो सरफेस रिप्रेजेंट करता है, कोई भी सरफेस स्पेस में सपोज एनी सरफेस इज देयर, स्पेस में कोई सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिर स्पेस में सरफेस रिप्रेजेंट करेगा, तो सरफेस के आउटर साइड में जो नॉर्मल होता है, यूनिट वेक्टर along the normal to the outer side of the surface, okay, drawn in outer side, generally surface का outer side positive direction में लेते हैं, okay, so surface पे किसी point पे outer direction में जो n cap vector लेते हैं ये, so in this direction surface के outer side में normal के direction में कोई vector, ओके, वो रिप्रेजेंट करता है, दिस इज व्हाट, ये वेक्टर अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी। ये जो सरफेस रिप्रेजेंट करता है, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आउटरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज फाई एक्स वाई जेड, सो इसके आउटर साइड में ये दिस इज अ पॉइंट P, इस पॉइंट पे आउटर डायरेक्शन में एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, बट वी रिक्वायर इन दिस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, हाउ कैन यू राइट यूनिट वेक्टर? इफ दिस रिप्रेजेंट ए वेक्टर, इज दिस रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन द आउटर साइड ऑफ द सरफेस, unit vector. If this is a vector, then in this direction unit vector you can find. What will be the unit vector? Unit vector equals to del phi upon modulus of del phi, because this gives a vector. ये एक वेक्टर है आउटरवर्ड डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर करें, तो यूनिट वेक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, सो n कैप। This is required for surface integral, ये outward in the direction of normal, ये यूनिट वेक्टर रिक्वायर्ड। सो जो सरफेस होगा, उस सरफेस की इक्वेशन से एक्स वाई जेड का जो रिलेशन है उसको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। यू नो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? डेल फाई की वैल्यू, डेल फाई इक्वल्स टू व्हाट, डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल जेड, ये फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट निकालने का। डेल फाई रिप्रेजेंट्स ये वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल आउटर साइड ऑफ द सरफेस एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ये। और यूनिट वेक्टर निकालना है तो जो भी वेक्टर ये आएगा यहां पर, है ना, उसका ये कौन सा क्वांटिटी होता है, इसमें कुछ मिसिंग है इसमें कुछ मिसिंग है। व्हाट इज मिसिंग? याद करो ग्रेडियंट की वैल्यू डेल फाई, कुछ मिसिंग है ना यहाँ पर। हेलो सर, आई जे के। यस, गुड, वेरी गुड, आई जे के, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डेल ऑपरेटर तो वैसे भी जानते हैं हम लोग, डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई डेल वाई डेल एक्स, वाई जे डेल वाई डेल वाई एंड के डेल वाई डेल जेड, इसी से तो होता है। तो इसमें क्या आएगा, आई आएगा, जे आएगा और के आएगा, बिकॉज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसको यूज करेंगे। ओके, सरफेस का इक्वेशन जो भी रहेगा उसी में से एक्स वाई जेड को फाइव की जगह यूज कर लेना है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n मिलेगा। फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, n कैप। n कैप क्या होगा, वेक्टर n अपॉन मॉडुलस ऑफ n, ये हो जाएगा n कैप। ये रिकॉर्ड है इसके लिए, सरफेस इंटीग्रल के लिए। ओके, सो सरफेस इंटीग्रल का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, जस्ट ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट बता दे रहा हूं क्या डेफिनेशन है। सिमिलर टू
डबल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसी टाइप का है। वो आप प्लेन सरफेस लेते हैं, वो आप प्लेन एरिया लेते हैं, एरिया को डिवाइड करते हैं और एक पर्टिकुलर एलिमेंट्री एरिया पे फंक्शन की वैल्यू को उसी के एरिया से इंटू करके सम लेके लिमिट लेते हैं, वही होता है डबल इंटीग्रल। सेम यार सरफेस लेना है 3D में, उस सरफेस एरिया को लेना है और सरफेस एरिया के साथ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट प्रोडक्ट कराना है। और यहाँ पर प्रोडक्ट कराएंगे, वेक्टर फंक्शन है तो डॉट प्रोडक्ट, जनरली डॉट को यूज करते हैं। डॉट लेते तो स्केलर मिलता है और क्रॉस लेंगे तो वेक्टर मिलेगा, वेक्टर सरफेस इंटीग्रल। सो जनरली डॉट वाला यूज करते हैं। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट लेना है और सम करना है, लिमिट लेना है, दैट इज द सरफेस इंटीग्रल। बट हियर मेन one thing is important that surface area may be vector surface area, may be scalar surface area. So vector surface area means वो outer डायरेक्शन में जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन देते ही वेक्टर बन जाता है वो। ओके, और सरफेस एरिया, एलिमेंट्री सरफेस एरिया, एनी सरफेस एरिया, जब भी सरफेस एरिया को डायरेक्शन दे दोगे आउटवर्ड साइड की डाउनवर्ड साइड, तो आउटर साइड में देंगे तो वो जो भी उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसको इनटू करेंगे तो वो वाला जो स्केलर एरिया है वो वेक्टर एरिया बन जाता है। सो हियर सपोज वी आर हैविंग ए सरफेस इन 3D। ओके, इसको डायरेक्शन बनाया हूं बट ये दिस इज सरफेस सपोज इन 3D। ये सरफेस मीन्स कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस है। इस सरफेस पे कोई पॉइंट लिया P, सपोज PI is a point and this surface is divided also like this. This is particular part, this is elementary surface, its surface area, scalar surface area, suppose its scalar surface area is delta S, scalar surface area, and in this elementary surface area there is a point on the surface PI, यहाँ पर एक point है PI। okay, PI is the point, this is the point PI, because vector function is defined on the point on surface. So surface पे एक point लिया P, उसके सराउंडिंग में एक surface area लिया small delta s, लिमिट लगा देते हैं delta tending to 0. So यहाँ पर इसका surface area सपोज delta s आई है, जैसे वहां पर DA लेते थे, DI लेते थे, डेल्टा AI लेते थे, तो यही पर DS डेल्टा SI सरफेस एरिया। और इस सरफेस एरिया जो ये है डेल्टा SI सरफेस एरिया, I मीन्स आयत सरफेस, दिस इज स्केलर। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस स्केलर एरिया सरफेस एरिया with ये यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन। सो ये मैग्नीट्यूड हो गया और यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना। यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आउटरवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर देते हैं आउटरवर्ड डायरेक्शन में। इस जगह पे सरफेस में आउटरवर्ड डायरेक्शन अलोंग नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर लेना है। उस यूनिट वेक्टर से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस कैन बी आल्सो रिटन लाइक दिस डेल्टा एस बार आल्सो वेक्टर एरिया। ओनली दिस क्वांटिटी इज स्केलर एरिया। ओके, सो ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर सरफेस एरिया लेंगे तो ये डेफिनेशन, दिस इज डेल्टा एस आई ith elementary part. When we do this process over all this type of rectangle to cover this whole surface, just we will vary
I from 1 to k, k tending to infinity. That is our process. Okay, ये surface area, this is vector quantity. Dot product with value of the function at that point. Value of the vector function at the point pi. Dot product with vector surface area of elementary surface part. This is a product. Carry over this product over all. Suppose 1 to k elementary parts are there. K parts are there. Okay. So I am taking limit n tending to k tending to infinity. यहाँ k लिया हूँ because यहाँ n आने वाला है. वो n को यूज करते हैं n कैप वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर के लिए यूज करते हैं. Okay. So this is, if this limit exists, then we define this as a surface integral of the vector function over the surface S. ये जो surface S है, this is the surface S. Okay, surface S. तो surface S के ऊपर जो वेक्टर फंक्शन f का surface integral है, that is this. This is also called normal surface integral. It is called normal. First of all, let's write its normal value here. S f dot n cap ds. See here, ds. What is ds? ds equals to n cap in the along normal in outer direction of the surface at any point. यूनिट वेक्टर है. सो यूनिट वेक्टर से स्केलर जो सरफेस एरिया इसको इनटू करो. दिस वेक्टर इज व्हाट? दिस. सो इन प्लेस ऑफ दिस फॉर द एवल्यूएशन प्रोसेस इसको एवल्यूएट करना है ना, तो ये ds बार इसको क्या लिखेंगे? n कैप ds. सो यार n कैप इज वेक्टर क्वांटिटी, ds इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो ये इस टाइप से हो जाता है. दिस इज द व्हाट? f dot n cap is the main vector part. ये ds scalar area है. Okay, now it is called, because ये किस डायरेक्शन में है? n cap नॉर्मल का डायरेक्शन में है. That's why it is called normal surface integral. Normal surface integral of vector function f over s. If s is the surface, normal surface integral of f, vector f over s. ओके, सो दिस इज मेन डेफिनेशन. सरफेस इंटीग्रल ये ऐसा भी लिखा रहता है, ऐसा भी लिखा रहता है. ये वेक्टर है, इस वेक्टर को ये वेक्टर के फॉर्म में इतना लिखा. सो हियर इसके साथ में जो वेक्टर कंपोनेंट है ये आके इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाता है. ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है. इसके लिए क्या होता है? फंक्शन एफ गिवन होता है, एन कैप हमको निकालना है सरफेस से. एन कैप आएगा, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है. फिर डीएस की वैल्यू कैसे लिखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यहां पर डीएस की वैल्यू लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. डीएस की वैल्यू कैसे लिखते हैं बुक में समझ में नहीं आएगा पहली बार में. ओके, कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व किया हो रहता है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कैसा आया डीएस. सो सी डीएस कैसे सॉल्व होगा. ओके, डीएस की वैल्यू कैसे राइट करना है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ दिस सरफेस इंटीग्रल. यहां पर मैंने सिंगल लाइन यूज किया है, यहां पर सिंगल लाइन, बट एक्चुअली सिंगल लाइन किसी बुक में डबल लाइन भी रहता है. बिकॉज ये क्या है, डीएस जो है ये एरिया पोर्शन है, सो डबल इंटीग्रल ही है. सो यू कैन राइट आल्सो लाइक दिस, और सिंगल भी लिख सकते हैं. जब एवोल्यूशन प्रोसेस आएगा ना, डीएस की वैल्यू में डीएस डी आएगा, डी वाई डीजेड आएगा या डीजेड डीएक्स आएगा. दो आएगा तो डबल इंटीग्रल हो जाएगा. और ये जो एस है,
जैसे यहाँ पर हमने इसको चेंज किया, ऐसे ही एस जो हो जाएगा ना उसका प्रोजेक्शन हो जाएगा किसी प्लेन पे। सो यह समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। ओके, सो दिस इज व्हाट नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर एस। नाउ ये एस कैसे निकलेगा, कौन कैसे निकलेगा, डीएस की वैल्यू फॉर एवोल्यूशन। ओके, सो सी सपोज वी आर हैविंग ये सरफेस पार्ट लाइक दिस, ये 3D हो गया, 3D प्लेन, this is x, this is y and this is z axis, this is origin. Okay, so here we are having a surface just like this is surface. Okay, और यहाँ पर ये element part, suppose this is elementary part और outer direction में normal है n cap. Okay, और इसकी ये है ds, this is surface। जो हमारे पास 3D में सरफेस होगा, कर्व सरफेस, उस सरफेस को, दिस इज 3D स्पेस में, सो 3 प्लेन्स आर देयर, x = 0, y = 0, z = 0 मींस xy प्लेन। सो ये जैसे है, ये z = 0 है, दिस इज y = 0, दिस इज x = 0। जो भी सरफेस है उस सरफेस से प्रोजेक्शन करेंगे, बिल्कुल 3D में जैसे एलिमेंट निकालते थे उसी टाइप का। सो इसका प्रोजेक्शन करना है, इस सरफेस का, जो भी सरफेस का पार्ट है, जस्ट टेक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन एनी ऑफ द प्लेन, मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है किसी न किसी प्लेन में उसका प्रोजेक्शन लेना है। जो प्रोजेक्टेड पार्ट है उस प्रोजेक्टेड पार्ट से ही ds की वैल्यू आएगा। ओके, सपोज इस डायरेक्शन में क्या होता है k यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में क्या होता है i यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में j यूनिट वेक्टर। ओके, अब इसका अगर प्रोजेक्शन हम यहां करें, सेम प्रोसेस है जैसे 3D में एलिमेंट निकालते थे ना, तो ये जो सरफेस है, सरफेस का प्रोजेक्शन करना है एनी ऑफ द प्लेन, किसी भी प्लेन में कर सकते, सुइटेबल प्लेन। डायग्राम बनाने के बाद समझ में आता है कि YZ में प्रोजेक्शन ले कि XZ में प्रोजेक्शन ले कि XY में प्रोजेक्शन ले। तो XY में प्रोजेक्शन हमने लिया, सो प्रोजेक्टेड पार्ट जैसा सरफेस रहेगा, अब वो सरफेस देखने से समझ में आएगा कैसा है। स्फीयर का प्रोजेक्शन होगा तो एक सर्कल बनेगा। ओके, सो जिस टाइप का है उसी टाइप का प्रोजेक्शन बनना है, और इसी जगह से ds की वैल्यू आएगा। ds की वैल्यू कैसे आएगा, किस में हमने प्रोजेक्शन लिया, z एक्सिस, z = 0, दैट इज xy प्लेन। यहां पर हमने क्या किया, अभी जस्ट वी आर टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन। xy प्लेन में प्रोजेक्शन लेने से ds की वैल्यू क्या होना है, ds = वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। सपोज ये z एक्सिस के डायरेक्शन में k है यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन जो है k है और ये डायरेक्शन है n। ये जो एंगल है, यू नो डायरेक्शन कोसाइन, एनीवन टेल मी, डायरेक्शन कोसाइन पता है, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस, कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं किसी वेक्टर का। हेलो, ये आया कैसे वो बता रहा हूं, 1 मिनट लगना है। ds की वैल्यू आएगा कैसे, लिखना तो समझ में आ जाएगा अभी। टेल मी एनीवन, यू नो 3D में डायरेक्शन कोसाइन lmn होता है, बट डायरेक्शन कोसाइन मींस cos अल्फा cos बीटा cos गामा, यू नो cos अल्फा cos बीटा cos गामा। अल्फा बीटा गामा आर व्हाट, एंगल्स मेकिंग बाय अ वेक्टर विद x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। x एक्सिस का डायरेक्शन से अल्फा एंगल मेकिंग करता है, y एक्सिस के साथ बेटा, z एक्सिस के साथ गामा। देन उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ओके, सो यहां पर ये जो एंगल है ना, ये किसका डायरेक्शन है, z एक्सिस का डायरेक्शन है, और दिस इज व्हाट, ये यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा cos बीटा cos गामा हो, तो इस वेक्टर को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ये n cap if
direction cosines of n cap are cos alpha, cos beta, cos gamma, then this vector can be written as like this: cos alpha I, cos beta j, cos gamma k. ओके, यहां क्या हो रहा है? यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इन ए स्पेस, इस वेक्टर जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस अल्फा बीटा गामा एंगल मेजर करता है, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। डायरेक्शन कोसाइन होता है तो उस वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर, बिकॉज cos स्क्वायर प्लस cos दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये जो n वेक्टर है ऐसा होता है। क्लियर? ये n वेक्टर। नाउ प्रोजेक्शन, 2D में प्रोजेक्शन पढ़ा है, एक वेक्टर इधर होता है, एक वेक्टर इधर होता है, ये b वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये थीटा एंगल मेजर करता है, तो इसका इस पे प्रोजेक्शन, जो ये वाला प्रोजेक्शन पार्ट होता है, b cos थीटा होता है। पता है कि नहीं? हेलो, जब एक वेक्टर ये होता है, एक वेक्टर b होता है, इस b वेक्टर का जब इस पे प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्टेड पार्ट इतना होता है, इसकी वैल्यू b cos थीटा होता है ना? ये यस सर। आई थिंक a cos थीटा होता है सर, ये वाला डिस्टेंस में ऐसा प्रोजेक्शन होता है ना। तो यहां पर क्या है, स्पेस का जब प्रोजेक्शन होगा, इस ds का प्रोजेक्शन यहां पर होता है, तो यहां का जो एलिमेंट्री पार्ट है, यहां ये ds, ये जो ds है, ds इंटू इसका प्रोजेक्शन पार्ट यहां पर है, ये प्रोजेक्टेड पार्ट है। सो अब किस में प्रोजेक्ट किया हमने? एक्स वाई प्लेन में। सो ये जो पार्ट बनेगा, यहाँ का जो एलिमेंट्री पार्ट बनेगा, इधर एक्स है उधर वाई है, तो डी एक्स डी वाई बनेगा। ये जो पार्ट बनेगा यहाँ पर डी एक्स डी वाई बनेगा। सो डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू क्या बनना है? कॉस गामा इंटू डी एस, कॉस गामा इंटू डी एस। ये ओके, ये प्रोजेक्शन से आया है, जस्ट इतना जान लो। तो यहां से क्या होता है? सो डी एक्स डी वाई की जो वैल्यू है, ये जो डी एस आया है ना, डी एस इंटू कॉस गामा। सो यहां से निकलता है डी एस की वैल्यू, डी एक्स डी वाई अपॉन कॉस गामा। अब इस ये जो एन कैप है, यहां से कॉस गामा अगर चाहिए तो हम एन कैप को साथ अगर आई का डॉट प्रोडक्ट है, के का डॉट प्रोडक्ट करें, बिकॉज हमको कॉस गामा चाहिए, कॉस गामा की वैल्यू सॉल्व करना है हमको। ये इंटीग्रल यहाँ एक्स वाई से रिलेटेड करके छोड़ देना है इसको बस, और डबल इंटीग्रेशन करना है। सो डी एक्स डी वाई तो आ गया, कॉस गामा आया, कॉस गामा की वैल्यू क्या होता है ये देखना है। अब एन कैप इक्वल्स टू ये है। अब इसको अगर के से डॉट प्रोडक्ट करें, क्योंकि इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया है, के का डायरेक्शन में, सो इस डायरेक्शन में अगर इसको डॉट प्रोडक्ट करें, इसको एन कैप को अगर के से डॉट प्रोडक्ट करें, मतलब इस वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना है के से, सो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये मिलेगा कॉस गामा। तो कॉस गामा की वैल्यू एन कैप डॉट के। ओके, सो पॉजिटिव डायरेक्शन लेने के चक्कर में इस जगह पे क्या लिखते हैं? डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन कैप के। ओके, ये लिखना है बस, यही है फॉर्मूला। जब एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लेना है सरफेस का, सो डीएस की वैल्यू क्या होना है? एक्स वाई प्लेन पे लेना है तो डीएस डी वाई, और नीचे क्या आएगा? एन कैप डॉट एक्स वाई को हटा दो, जेड बचा, जेड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका डॉट लेना है। सो वाई जेड पे अगर करेंगे तो क्या होना चाहिए बताओ? दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डीएस की वैल्यू। डीएस की वैल्यू लिखने के लिए है ना। अब डीएस की वैल्यू लिखते हैं। जब हम अगर इस सरफेस का प्रोजेक्शन वाई जेड प्लेन में लेंगे तो क्या होगा? टेल मी। ये देखो डायरेक्ट ये वैल्यू देखो, डीएस की वैल्यू एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया तो डीएस डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के हुआ। अब अगर सरफेस का प्रोजेक्शन हम वाई जेड प्लेन में करेंगे तो क्या होगा? यहां पर डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड। यहां क्या लिखना पड़ेगा?
एन कैप डॉट आई, जो यहां पर नहीं है उसको। सिमिलरली ds की वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, dx dz, इसमें क्या आ जाएगा अपॉन एन कैप डॉट जे। ओके, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये इस ds के जगह पे लिखना है। सो आप देखो सब आ गया, क्या होगा, और ये इसको प्रोजेक्ट किया, अगर ये रीजन आर बन गया, सपोज ये प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्शन रीजन आर हो गया। जैसे स्फीयर का प्रोजेक्शन किया तो सर्कल बना, तो सर्कल रीजन बन गया। तो उस रीजन में डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर इधर जाके। अब क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है। तो सपोज ऐसा है, ये सरफेस इंटीग्रल, इस सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो एफ गिवन फंक्शन है और एन कैप फाइंड करना है सरफेस की इक्वेशन से। सो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके रख लेना है, तो स्केलर क्वांटिटी होगा। उस स्केलर क्वांटिटी रहेगा और डीएस की वैल्यू, प्रोजेक्शन किस में लिया उसके हिसाब से ये या ये तीनों में से किसी एक को लिखना है। सो सपोज ये लिखा dx dy अपॉन एन कैप डॉट के कैप, ये लिख दिया। और यहां पर ये जो डबल इंटीग्रेशन बन जाएगा, रीजन आर बन जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन होना है इस स्केलर क्वांटिटी का, डीएस dy एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डबल इंटीग्रेशन होना है ओवर द रीजन R, that is projected part of the surface in XY plane, XY plane। अगर YZ मिलेंगे तो YZ से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, फिर इसको सॉल्व करना है, यही प्रोसेस है सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करने का। ठीक है, सॉलिड रीजन अगर है, उसमें अगर अलग अलग फेस है, सो अलोंग एवरी फेस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल। अगर कोई सरफेस एरिया ऐसा है कि दो तरफ प्लेन है, दो तरफ कर्व है, मतलब कर्व सरफेस है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे लाइन इंटीग्रल में कर्व C1 C2 C3 C4 हो जाता है, यहाँ सरफेस में भी S1 S2 S3 S4 हो जाता है। जिस सरफेस में बोलेंगे, अगर ओनली सरफेस एरिया कर्व सरफेस पार्ट में बोलेंगे तो केवल कर्व सरफेस पार्ट में, कर्व सरफेस पार्ट में ही प्रॉब्लम है। और अगर प्लेन सरफेस हो जाता है तो एक डायरेक्शन, या तो k डायरेक्शन आता है, या तो j डायरेक्शन आता है, या तो k डायरेक्शन आता है। दिस इज डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, तो वो फिर एन कैप निकालना नहीं पड़ता है अगर कर्व नहीं है तो, क्योंकि इस एक्सिस के प्लेन अगर है, जैसे जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, इसके पैरेलल कोई भी प्लेन सरफेस ले ले तो क्या बनेगा, के डायरेक्शन जो भी रहेगा। अगर इस डायरेक्शन हुआ तो के, इस नीचे वाला डायरेक्शन हुआ तो माइनस के। प्लेन में कर्व्ड हुआ तो फिर एन कैप निकालना पड़ेगा। एन कैप कैसे फाइंड होगा, डेल फाई बाई डेल मॉड ऑफ डेल फाई। डेल फाई, फाई क्या है, सरफेस का इक्वेशन, उस हिसाब से एन कैप को निकालना पड़ेगा। अब फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर ये वैल्यू लिख के सॉल्व। ओके, नाउ वी कैन टेक क्वेश्चन also here. One application is this, flux of vector function. Flux of vector function means it represent also flux. Flux means क्या होता है, of f. If vector point function f represent velocity of a फ्लूइड पार्टिकल, या कोई भी रीजन है, उस रीजन के अंदर सरफेस है और वो क्लोज सरफेस है, और उस क्लोज सरफेस वाली पार्ट से कितना क्वांटिटी फ्लो होता है वो निकालना है। तो ये होता है फ्लक्स ऑफ एफ व्हेन एफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा तो उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अलोंग ए क्लोज्ड सरफेस, अलोंग ए क्लोज्ड सरफेस जो फ्लक्स होगा वो यही सरफेस इंटीग्रल होता है। सो सरफेस इंटीग्रल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग फ्लक्स ऑफ ए वेलोसिटी फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। फ्लक्स निकालना हो तो भी यूज करते हैं। सो ये इसका एप्लीकेशन है। ओके, नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चन, है ना। इसके बाद एक और है, पहले एक सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद एक थ्योरम है, जैसे ग्रीन्स थ्योरम था, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए डबल इंटीग्रल में चेंज कर लेते हैं। यहां भी वही है, सरफेस इंटीग्रल की जो वैल्यू है ना और लाइन इंटीग्रल की वैल्यू दोनों रिलेट होता है।
सो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालने का जगह सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल देते हैं। ओके, वो एक थ्योरम है, उसको देखेंगे बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक ए क्वेश्चन ओनली, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर मैं सिंपल ले रहा हूँ एकदम, है ना। 4 पार्ट में भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट सिंगल पार्ट लेते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है क्वेश्चन? हेलो, एफ डॉट एन कैप या कैपिटल एन लिखा हुआ है और ds लिखा हुआ है, वेक्टर की वैल्यू लिखा हुआ है, वेक्टर फंक्शन की वैल्यू लिखा है। s इज द सरफेस ऑफ द सिलेंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन। s को क्या बताया? सरफेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब यह एक ही पार्ट लेना है, प्लेन पार्ट को नहीं लेना है। ओके, सो यहां पर सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम देखने से समझ में आएगा कि कहां पर प्रोजेक्शन लेना है और ये सॉल्व हो जाएगा। एन कैप तो निकालना ही है, क्लियर है ना। सो हियर सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट, गिवन फंक्शन एंड सरफेस। सॉल्यूशन, given function is, what is given? F, vector function f equals to zx minus 3y square z, zi plus xj minus 3y square z k. This is vector point function. Okay, and surface, here s is what? s is the surface of cylinder only, प्लेन के बारे में नहीं बताया, फर्स्ट ऑक्टेंट का पार्ट को लेना है। ओके, सो एंड सरफेस इज द surface of s is the, you can write s is the surface of cylinder x square plus y square equals to 16 in first octant। क्योंकि 3D में है ना, ये सिलेंडर बोल रहा है। सिलेंडर बोलने का मतलब क्या है? x स्क्वायर प्लस 16, सर्कल दिख रहा है बट सिलेंडर है। ओके, सो सिलेंडर है तो सिलेंडर का फर्स्ट ऑक्टेंट का पार्ट लेना है। और सिलेंडर तो कितना भी लंबा ले सको, इनफाइनाइटली जेड के डायरेक्शन में। सो बाउंड्री दिया हुआ है, ऑक्टेंट बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5, बिटवीन z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5। बिकॉज सिलेंडर जो है इस टाइप का है ना, ऐसा डायरेक्शन में, ये जेड का डायरेक्शन है, वो तो इनफाइनाइट लेंथ तक जाएगा। तो यहां पर क्या है, z इक्वल टू 0 से लेकर z इक्वल टू 5 तक, इस टाइप का है। ये वाले पार्ट में जो फर्स्ट ऑक्टेंट में, उस पार्ट पे कंसीडर करना है। सो वी कैन ड्रॉ द इट्स डायग्राम लाइक दिस। कैसे बनाएंगे डायग्राम? ये है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस एंड ओनली फर्स्ट ऑक्टेंट वाला पार्ट लेना है। 8 पार्ट में से एक पार्ट को लेना है, बिकॉज सिलेंडर तो पता है कैसा होना है, सिलेंडर इस टाइप का होना है। सिलेंडर इस टाइप का होना है ये, हाँ, तो इनफाइनाइट लेंथ तक जाना है। बट हमको क्या करना है, ये नीचे वाला पार्ट में z इक्वल टू 0 और यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट जहां भी आएगा वहां पर क्या आएगा, z इक्वल टू 5। ये वाले पार्ट को लेना है, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट, ओनली दिस पार्ट, ये फर्स्ट ऑक्टेंट वाले पार्ट। सो ड्रॉ लाइक डायग्राम लाइक दिस। अपर पार्ट में ऐसा ले लेते हैं, इस साइड में ऐसा ले लेते हैं। थोड़ा 3D डायग्राम को अच्छे से बनाना है ना हमेशा। ओके,
ज़्यादा ले लिया। Now, this is the surface part. अब ये समझ में आ रहा है, 1/8 पार्ट मीन्स सिलेंडर है, उसका फर्स्ट ऑक्टेंट का पार्ट भर बनाया हुआ यहां पर। ओके, मतलब इस प्लेन से बाउंड है, इधर वाले प्लेन से बाउंड है, उधर वाले प्लेन से बाउंड है, नीचे z=0 से बाउंड है, ऊपर z=5 पे बाउंड है, और ये है सरफेस, ये वाला, ये जो कर्व सरफेस है किसका, सिलेंडर का। ओके, ये है। कितने कितने फेस है इसमें, टेल मी हाउ मेनी फेसेस आर देयर, इसमें पार्ट में कितने फेस है, यहां पर z=0, यहां पर z=5। ओके, सो ये तो नीचे z=0 एक प्लेन हो गया, एक फेस हो गया, ऊपर एक फेस z=5 हो गया, और कितने फेस है, टेल मी एनीवन, बताओ कितना फेस है। देखो इंटीग्रेशन लेंदी नहीं है, इसको समझना है अच्छे से ना। हेलो, टेल मी क्या होना है, हाउ मेनी फेसेस आर देयर, सिलेंडर का फर्स्ट ऑक्टेंट का पार्ट लिया, एक इधर वाला प्लेन, एक उधर वाला प्लेन, एक इधर वाला कर्व सरफेस, एक नीचे z=0, एक ऊपर z=5। हाउ मेनी फेसेस आर देयर, कितने फेस है, 5 फेस पे निकालना पड़ेगा, बट यहां पर क्वेश्चन में ओनली सरफेस ऑफ द सिलेंडर बोले हैं, केवल हमको ये वाले कर्व्ड वाले पे ही कंसीडर करना है इस क्वेश्चन में। अगर पूरे सॉलिड पे लेता तो 5 सरफेस पे वर्क करना पड़ता, मतलब ये जो हम निकालने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू, इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू अभी केवल कर्व्ड सरफेस पे निकालेंगे। बाकी अगर टोटल सॉलिड का सरफेस इंटीग्रल करना होता तो ये पांचों सरफेस को लेना पड़ता। कैसे, ऐसे S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, ये 5 बार करना पड़ता, 5 टाइम्स। बुक में हर जगह क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है, सब निकल आता है जल्दी जल्दी। S1 S2 S3 S4, इसमें से एक सरफेस जो है कर्व सरफेस है, तो अभी हमको कर्व सरफेस पे ही वर्क सॉल्व करना है। बाकी तो प्लेन पे है, प्लेन पे करेंगे तो इजी हो जाता है, वहां भी सभी प्रोसेस करना पड़ता है, जो प्रोसेस एक के लिए है सबके लिए वही है, बट कर्व सरफेस वाले पार्ट के लिए एन कैप निकालने का प्रोसीजर करना पड़ता है, बिकॉज प्लेन के लिए एन कैप निकालना वेरी सिंपल। देखो अगर हम z=5 वाले प्लेन पे एन कैप निकालना चाहें तो एन कैप क्या होता है, एन कैप यूनिट वेक्टर आउटर साइड में नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है। तो ये ऊपर में z=5 है, इसके बाहर साइड में नॉर्मल का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा, टेल मी क्या होगा। हेलो, ये z=5 प्लेन है, प्लेन उस प्लेन के आउटर साइड में, बिकॉज ये है, इसके आउटर साइड में नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, जो z के डायरेक्शन में है, k कैप, क्योंकि ये तो प्लेन ऐसा है z से परपेंडिकुलर में है, तो बाहरी साइड में क्या होगा, n कैप की वैल्यू k की डायरेक्शन होगा। नीचे वाला जो प्लेन है z=0, नीचे वाला प्लेन, इसके बाहरी साइड नीचे तरफ है, तो n कैप की वैल्यू क्या होगा, हेलो, -k कैप। गुड, उसी टाइप से डायरेक्ट मिल गया n कैप की वैल्यू। जब इस प्लेन के लिए करेंगे, ये OAED, इसके बाहर साइड में लेंगे, मींस y के इस डायरेक्शन में लेंगे, तो -j होगा।
क्लियर है? जब ये वाला प्लेन जो है OBCD, उस प्लेन में उसके बाहरी साइड के डायरेक्शन में लेंगे तो माइनस आई आएगा, क्योंकि आई का नेगेटिव उस तरफ। तो उसमें एन कैप निकाला, चारों के लिए निकल गया, तो एन कैप इजीली आ जाता है, एफ डॉट एन कैप कर देना है। उस फंक्शन जितना भी दिया रहे केवल आई जे के रहता है, एक पार्ट बचता है और सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाता है। और इस प्लेन में क्या y की 0 कर देते हैं, इस प्लेन में क्या करेंगे x को 0 कर देंगे, इस प्लेन में क्या करेंगे z को 0 कर देंगे, तो वो भी इंटीग्रेशन वेरी सिंपल हो जाता है। मेन कर्व सरफेस पार्ट वाले को निकालने में टाइम लगता है, तो कर्व सरफेस वाले पार्ट में एन कैप को क्या लेना है, वही डेल फाई बाई मॉड ऑफ डेल फाई, वो करना पड़ेगा अभी। ओके, सो नाउ ओनली इस सरफेस पे करेंगे हम, ओके, ये वाले सरफेस में। और ds की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो कर्व सरफेस वाला पार्ट है उसका प्रोजेक्शन करना पड़ता है। तो यहां पर प्रोजेक्शन हम yz प्लेन में ले सकते हैं, zx प्लेन में ले सकते हैं, बिकॉज सिलेंडर ऐसा है तो ऐसा प्रोजेक्शन नहीं लेंगे, ऐसा प्रोजेक्शन लेंगे तो यही पार्ट मिलेगा। तो ये जो सरफेस वाला पार्ट है उसका प्रोजेक्शन या तो yz प्लेन में लेंगे या तो zx प्लेन में लेंगे, तो yz प्लेन में ले लेंगे। ये जो कर्व सरफेस है उसका प्रोजेक्शन उधर ले लेंगे, उसका प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या बनेगा, यही वाला पार्ट बनेगा। ओके, तो वहां से ds मिल जाएगा। अब n कैप कैसे आएगा, अभी इस कर्व सरफेस के लिए n कैप सरफेस का जो इक्वेशन है दैट इज व्हाट दिस, इस सरफेस की इक्वेशन से फाई बनाना है। फाई क्या बनेगा, ये x² + y² - 16, इसको इधर ले आना है, तो उसका डेल फाई निकालना है और फिर मॉडुलस ऑफ डेल फाई से डिवाइड करना है, n कैप आएगा। सो वो n कैप निकाल लेना है और f गिवन है, f डॉट n कैप करना है। और प्रोजेक्शन अगर yz प्लेन में लेंगे ds की वैल्यू dy dz बाई मॉड ऑफ n कैप डॉट, वो जो हम n कैप निकाले वो उसके साथ डॉट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कौन सा डॉट करना पड़ेगा, इसमें yz अपन वो तो पता है, n कैप डॉट i, फिर सॉल्व कर देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर वर्क इज व्हाट, फॉर फाइंडिंग दिस सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल फाइंड करने के लिए भी n कैप निकालना है। n कैप इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर outward, you can write like this, outward unit normal vector in outward direction is given by n cap equals to del of x² plus y² plus minus 16 equals to, पहले तो ये डेल निकाल लेते हैं ना, डेल की वैल्यू निकाल लेते हैं, n कैप दिस अपन मॉडुलस ऑफ दिस। तो पहले n वेक्टर ही निकाल लेते हैं ना, यूनिट वेक्टर नहीं। normal vector in outward direction is given by n equals to, अब इसकी वैल्यू कोई बताओगे मेरे को, किसी को पता है क्या लिखना है, डेल फाई की वैल्यू निकालना, ग्रेडियंट निकालना है। क्या होता है, डेल फाई बाई डेल एक्स आई, डेल फाई बाई डेल वाई जे, डेल फाई बाई डेल जेड के। सो यहां पर डेल फाई बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इसका क्या होना है 2xi and plus 2y j and k वाला पार्ट नहीं है, बस इतना ही। ओके, सो दिस इज n कैप। ये n कैप है, हमने ये क्या किया, नॉर्मल वेक्टर इन आउटरवर्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो शॉर्टकट में नॉर्मल वेक्टर इन आउटरवर्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय n कैप, देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन यूनिट नॉर्मल वेक्टर, देयरफॉर n कैप। n cap means unit vector. This is equals to what? Del phi upon modulus of del phi. यहाँ पर phi, इसको phi रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर जब लिखते समय ना इसको ऐसे बना लेना है, phi equals to
x square plus y square minus 16 equals to 0. You can consider like phi. So del phi. So del phi upon mod of del phi is equals to what? Del phi तो ये है और नीचे उसका मॉडुलस लेना है. So क्या हो जाएगा? 2x I plus 2y j upon मॉडुलस ऑफ दिस. इस वेक्टर का मॉडुलस निकालना है. So ये 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर यहाँ पर अंदर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर. ओके, ये मिला. सो यहाँ पर अभी लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना. अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत, है ना. अब लिखना क्या है इसमें, देयरफॉर n कैप इक्वल्स टू, सी नीचे क्या बन रहा है, 2 स्क्वायर बाहर करो, 2 ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, x i प्लस y j. इसको सॉल्व करना सिंपल कर लेना है. वो नीचे आएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज गिवन 16. सो नीचे क्या है, रूट 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4. सो 1/4 xi प्लस yj. ये हो गया सॉल्व. क्या किया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू सरफेस पे 16 होता है, सरफेस की इक्वेशन से 16 लिखा तो 4 हो गया. ये देखिए n कैप. ओके, ये हो गया n कैप. अब हमको f डॉट n कैप ds निकाला. ये n कैप आ गया, f ये गिवन है और ds की वैल्यू टेक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस ऑफ सरफेस, क्या लिखूं, ए बी सी ई. ए बी सी ई, ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस, इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वाई जेड पे ले रहे हैं. तो टेक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस ए बी सी ई ऑन वाई जेड प्लेन. ऑन वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन में भी ले सकते हैं, दो में से किसी में भी. सो ऑन वाई जेड प्लेन, देन तब ds की वैल्यू क्या होना है, ds इक्वल्स टू, देन ds इक्वल्स टू dy dz अपॉन n कैप डॉट, क्या वैल्यू लिखना है, टेल मी. ds इक्वल्स टू I. yz है तो यहां पर i लेना है. ओके, बस अब इसको सॉल्व कर देना है. n कैप की वैल्यू तो है यहां पर, हम लोग n कैप बनाए थे ना, ये n कैप ये है, n कैप ये है और इसके साथ किसका डॉट प्रोडक्ट करना है, i का. सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, dy dz अपॉन n कैप डॉट i. यू कैन राइट डायरेक्ट n कैप ये है और i है, i का डॉट, इसके साथ i का डॉट करना है तो 1/4 मिलेगा. सो 1/4 बिकॉज 1/4x यही होना है ना. i का डॉट करोगे तो ये वाला बचेगा, ये तो खत्म हो जाएगा. सो 1/4x. सो ds इक्वल टू दिस. अब ds की वैल्यू ये यूज करना है, f ये यूज करना है, n ये यूज करना है और डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है ओवर द रीजन OBCD. बिकॉज इसका प्रोजेक्शन OBCD बना है उस प्लेन में, वो है प्रोजेक्टेड पार्ट, वहां से आएगा yz की लिमिट. सो ये f है. अब यहां पर लिख देते हैं, इंटीग्रल ही चालू करते हैं. Thus we get double integral s f dot n cap ds equals to double integral s f dot n cap. f क्या था, zxn minus 3y square z i plus xj minus 3y square z k डॉट n कैप क्या था, 1/4 xi plus yj ds. ओके, इस पूरे वैल्यू को इसमें लिख देना है. क्लियर. सो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अभी डबल इंटीग्रल s, अभी भी मैं s लिख के रख रहा हूं यहां जब तक ds लिखा है. जैसे वो वैल्यू लिखूंगा
वैसे यहाँ पर रीजन आ जाएगा वो ओ बी सी डी। सो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें आई आई एक्स जेड 1/4 एक्स जेड आई आई रहेगा और जे जे एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड ये एक्स जेड एक्स वाई एंड के नहीं है तो 0 फिनिश हो जाएगा वो एंड dx। अब dx के जगह वो वैल्यू जैसी लिखेंगे ना यहां पर क्या आ जाएगा रीजन ओ बी सी डी प्रोजेक्टेड पार्ट और ये है 1/4 बाहर यहां पर आया एक्स जेड प्लस एक्स वाई एंड ये हो जाएगा dx नो dy dz क्या था वैल्यू dy dz अपॉन 1/4 x मॉडुलस है। सो सी हियर 1/4 कैंसिल यहां से एक x निकलेगा वो भी अंदर अंदर कैंसिल क्या इंटीग्रल निकला अपना इंटीग्रल ऑफ y z प्लस y dy dz और ये जो रीजन है वो भी सी डी फ्रॉम दिस रीजन लिमिट ऑफ y एंड z ये पार्ट कितना वैल्यू ये z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 5 मतलब ये 5 है और ये क्या है 4 है। सो लिमिट क्या हो जाएगा y की लिमिट y इक्वल टू 0 टू व्हाट y इक्वल टू 0 टू एंड z इक्वल टू 0 टू टेल मी z इक्वल टू 0 टू 5 तो क्लियर है और y इक्वल टू 0 टू 4 ये लिमिट के साथ इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सो सॉल्व इट और आंसर बताओ जल्दी सॉल्व करो। हेलो सब लोग सुन रहे हो ना हेलो हाँ अब देखो इंटीग्रेशन हो गया पूरा सॉल्व हो गया। अब देखो इंटीग्रल क्या आ गया z प्लस वाई और लिमिट कहां से आया प्रोजेक्टेड पार्ट क्या है ओ बी सी डी तो यहां से यहां तक y की लिमिट 0 टू 4 z की लिमिट 0 टू 5 सो ये लिमिट रखा 0 टू 5 0 टू 4 ये y की लिमिट है x की लिमिट है और z प्लस वाई dy dz इसको सॉल्व करना है इस इंटीग्रल को। सो सॉल्व इट फास्ट हाँ ओके यही तो है करो सॉल्व करो क्या आएगा वैल्यू तुम्ही लोगों के ऊपर है सॉल्व करना है एफ डॉट एन कैफ डीएस की वैल्यू निकल रहा है ना टेल मी वेरी फास्ट जल्दी करो चलो आंसर बताओ हेलो अभी तक इंटीग्रेट नहीं किए कोई भी इतना इजी इंटीग्रेशन है यस 90 ना Yes, sir. गुड यही आंसर है सिंपल तो है किसके ये दोनों कांस्टेंट लिमिट है पहले y के रेस्पेक्ट में कर लो फिर z के रेस्पेक्ट में कर लो और इंटीग्रेट कर दो 90 वैल्यू आएगा ये तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। सो व्हाट इज द प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल f गिवन रहता है n कैप कर्व्ड वाले पार्ट के लिए कर्व्ड सरफेस वाले पार्ट के लिए जो सरफेस है उसके इक्वेशन से डेल फाई निकालना है डेल फाई माने ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई n कैप बनेगा तो n कैप आ गया तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है और ds प्रोजेक्शन कहा लिया xy प्लेन या yz प्लेन या xz प्लेन
उस प्लेन में प्रोजेक्शन लेके उस प्रोजेक्टेड पार्ट से फिर लिमिट निकालना है। फिर वो लिमिट निकाल के रख दिया यहाँ पर, ये प्रोजेक्टेड पार्ट था, वहां से लिमिट निकाला रखा, डबल इंटीग्रल सॉल्व किया, तो सरफेस इंटीग्रल सॉल्व हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। हेलो, टेल मी, कोई ना कोई बताओ प्लीज। Stokes theorem से स्टोक्स थ्योरम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। 3 थ्योरम तो है, स्टेटमेंट भर तो पता करना है और कुछ करना थोड़ी है इसमें। स्टेटमेंट भर मालूम होना चाहिए, बाकी फिर लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, यही सब दिखेगा बस। ओके, सो जैसे लाइन इंटीग्रल किसको कनेक्ट करता था, लाइन इंटीग्रल को किससे कनेक्ट करते थे, ग्रीन्स थ्योरम में। इन प्लेन वी आर कनेक्टिंग ग्रीन्स लाइन इंटीग्रल टू ग्रीन्स थ्योरम पढ़े थे ना पिछले क्लास में। ग्रीन्स थ्योरम में क्या करते थे, किस इंटीग्रल को कौन से इंटीग्रल में ट्रांसफर करते थे, लाइन को सरफेस, सरफेस नॉट डबल इंटीग्रेशन, प्लेन में लेते थे ना। ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन पढ़े थे हम लोग, ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन पढ़े थे। तो प्लेन मतलब डबल इंटीग्रेशन, सिंपल, जो पहले डबल इंटीग्रल पढ़ के आए वही है। ओके, सो यहां पर स्टोक्स थ्योरम्स में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। अब किसका सरफेस इंटीग्रल करना है, और लाइन इंटीग्रल तो उसी टाइप का दिया रहेगा, 5dx प्लस साइड ui प्लस और कुछ भी रहा, अगर ट्रिपल में हो सकता है, f1 dx, f2 dy, f3 dz, इस टाइप का है ना। लाइन इंटीग्रल उसी टाइप का तो होता है, f डॉट dr होता है, f डॉट dr। बट लाइन इंटीग्रल में एक क्लोज्ड कर्व भी होना चाहिए, एक कर्व होना चाहिए, मतलब ओपन हो चाहे क्लोज हो। अब आप सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो सरफेस भी रहेगा, कर्व भी रहेगा। सो इसमें क्या है, इफ एनी ओपन सरफेस, कोई ओपन सरफेस यू नो, ओपन सरफेस जैसे हाफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर, हाफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर अगर हम ले तो इस टाइप का सरफेस होगा। तो ओपन सरफेस का बाउंड्री क्या होगा, अगर स्फीयर लिया जाए उसका हाफ पोर्शन लेते हैं तो ये ओपन सरफेस हो जाएगा। तो ओपन सरफेस का बाउंड्री क्या होगा, अगर हम हाफ सरफेस, हाफ स्फीयर लें तो टेल मी इफ अभी तक बताया नहीं किसी ने, मैंने क्या बोला, पूछा स्फीयर का हाफ पोर्शन ले ले तो उसका बाउंड्री को कनेक्ट कौन करता है, सर्कल सर, सर्कल करेगा ना। जैसे ओपन स्फीयर लिया, ये हाफ पोर्शन लिया, मतलब इस टाइप का, ये ऐसे तो होता है। ये जो ओपन पार्ट है, ये जो बाउंड्री को तो सर्कल कवर करता है ना। तो एनी ओपन सरफेस लोगे तो उसका एक बाउंड्री तो होगा ही। सो वो जो बाउंड्री है दैट इज कर्व। सो इफ एस बी ए ओपन सरफेस which is bounded by a closed curve C, which is bounded by a closed curve C. Okay, and ये जो सरफेस है, सरफेस के हर एक पॉइंट में एक वेक्टर फंक्शन डिफाइन है। सो फंक्शन लेना पड़ेगा। क्या है, एक ओपन सरफेस है जिसका बाउंड्री क्या है, C है, क्लोज्ड कर्व C, एंड F, इस F को क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट के साथ लिखा होता है F, शॉर्टकट में लिख देते हैं F B, ये हमेशा लिखना पड़ता है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं कभी भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, कभी भी इंटीग्रेट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सो एफ बी ए कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन
डिफाइंड ऑन द सरफेस। सरफेस पे एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड है। देन ये है स्टेटमेंट, जस्ट इसको याद रखना है, ठीक है, ऑलवेज याद रखना पड़ेगा, है ना। क्या करता है, लाइन इंटीग्रल को कनेक्ट करता है, लाइन इंटीग्रल ये होता है, क्लोज कर्व तो मिल ही गया, उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल हो गया, क्लोज कर्व है तो यू कैन राइट लाइक आल्सो, इस टाइप का लिख सकते हो, कभी लिखते हैं कभी नहीं भी लिखते हैं, क्लोज कर्व है तो ऐसा लिखा इसलिए। ओके, ये लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, सरफेस इंटीग्रल की इक्वल होता है। और किसका सरफेस इंटीग्रल की इक्वल होता है, कर्ल एफ डॉट एन कैप डीएस, सरफेस इंटीग्रल। ये जो सरफेस है उस सरफेस पे सरफेस इंटीग्रल, उस सरफेस पे सरफेस इंटीग्रल करना है, किंतु किसका करना है, वेक्टर फंक्शन के कर्ल निकालना है, दैट इज आल्सो वेक्टर। क्योंकि कर्ल भी निकालते थे हम लोग, डाइवर्जेंस निकालते थे, कर्ल निकालते थे, ग्रेडियंट निकालते थे, तो कर्ल जब निकालेंगे तो भी एक वेक्टर होगा। इस कर्ल एफ का सरफेस इंटीग्रल, सो एफ के जगह कर्ल एफ होगा डॉट एन कैप डीएस, ये है थ्योरम। ओके, ओपन सरफेस है जिसका बाउंड्री सी है, उस बाउंड्री के अलोंग लाइन इंटीग्रल करना है एफ का, और सरफेस इंटीग्रल इस एफ के कर्ल का करना है, किस पे, उसी सरफेस के ऊपर। ये है लाइन इंटीग्रल, ये है सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल इसका होता है कर्ल एफ का, लाइन इंटीग्रल एफ का होता है। सो ये दोनों इंटीग्रल इक्वल होता है, दैट इज स्टोक्स थ्योरम स्टेटमेंट। इस का यूज करके भी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये निकालना इजी है, लाइन इंटीग्रल में बहुत समय लगता है। ओके, कभी कभी ये इसमें दिक्कत है, ये इसमें भी बहुत टाइम लगता है, तो ये निकालने की जगह ये निकाल देते हैं, बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम्स दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, इस टाइप का होता है। और यहाँ ये ओपन सरफेस है, उसका बाउंड्री जो है सी है, उस बाउंड्री के अलावा अगर लाइन इंटीग्रल कर दे, ये निकालना इजी है, तो सरफेस इंटीग्रल कभी कभी निकालने की जगह पे इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, अगर इस टाइप का दिया है तो। और अगर लाइन इंटीग्रल कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालने की जगह इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, तो लाइन इंटीग्रल आ जाता है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम, मतलब किसी भी आइदर साइड की वैल्यू, जो साइड इजी है उससे दूसरे की वैल्यू निकल आता है। ओके, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए हम सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ गिवन होगा, कर्ल एफ निकालना है, एन कैप निकालना है, डॉट करना है, और डीएस की वैल्यू पता है कैसे करते हैं, यूज करना है, सरफेस इंटीग्रल सॉल्व कर देना है। सो दिस इज स्टोक्स थ्योरम। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है समझ में आ गया ना, हेलो, आया कि नहीं स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट इजी है। ओके, नाउ इसके बेस पे क्वेश्चन लेते हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरीफाई करने आ सकता है। वेरीफाई करने आएगा तो ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, दोनों निकाल के वेरीफाई करना है। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं वेरिफिकेशन का। पहले कि देखते हैं कि ओपन सरफेस लिया जाए, उसका बाउंड्री सी हो, तो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू यूज इक्वल होता है कि नहीं। सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू राइट हैंड साइड निकालने जाएंगे तो कर्ल एफ निकालना पड़ेगा। कर्ल एफ का डेफिनेशन पता है? हेलो, कर्ल एफ पता है क्या होता है? टेल मी। डेल क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालते हैं उससे आता है ना? यस यस, दिस इज क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं एकदम, है ना। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, बिकॉज देखो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम में जो सरफेस इंटीग्रल आता है ना, बहुत लेंथी रहता है, बहुत टाइम लगता है, वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगता है, दोनों साइड सॉल्व करना पड़ता है। सो प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। यहां पर ये क्वेश्चन लिया अभी हमने, देखो वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड एफ, एफ की वैल्यू दिया है, वेक्टर फंक्शन दिया है, ओवर द अपर हाफ सरफेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाउंडेड बाय इट्स प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन। सो कोई बताएगा पोर्शन कौन सा है? क्यों, क्या पोर्शन है बताओ? स्फीयर।
स्फीयर का हाफ पोर्शन है और प्रोजेक्शन किस पे लिया गया है, एक्स वाई प्लेन पे, है ना। सो बिल्कुल सिंपल है और वेरीफाई करना है हमको स्टोक्स थ्योरम। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आवर रिक्वायरमेंट इज व्हाट, सब कुछ निकाल लेना पड़ेगा ना पहले। अपर हाफ पोर्शन इज द सरफेस स्फीयर का, ये तो सेंटर है 0 0 0 एंड रेडियस है 1 का स्फीयर है, अपर हाफ सरफेस है। उस सरफेस के लिए हमको क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है। उसके लिए हमको कर्ल एफ भी निकालना है, एन कैप भी निकालना है। तो जब ये सब कुछ निकालना है तो पहले ये निकाल लेते हैं, फिर ये निकाल लेते हैं, तो फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकलेगा। सरफेस इंटीग्रल निकालना है, उसके बाद लाइन इंटीग्रल किसके अलम होगा, टेल मी, लाइन इंटीग्रल किसके अलम होना है, क्या होगा लाइन इंटीग्रल, कर्व क्या होगा इसमें, डायग्राम कैसे बनना है, दिस इज एक्स वाई एक्सिस, this is x axis and this is z axis. Okay, z axis, this is z axis and origin. This is surface S, okay, and O is origin and closed curve. कर्व लिया मतलब डायरेक्शन बना, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, ये डायरेक्शन, ये क्लोज्ड कर्व है, दिस इज सी। इस क्लोज्ड कर्व के अलावा लाइन इंटीग्रल होना है और इस सरफेस के ऊपर क्या होना है, सरफेस इंटीग्रल होना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल होगा लाइन इंटीग्रल। ओके, सो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना। सो सॉल्यूशन, टू वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, to verify Stokes theorem, we have to show that, क्या दिखाना है, लाइन इंटीग्रल C f dot dr equals to surface integral S curl f dot n cap ds, where vector f is given, f is what, 2x minus y I, 2x minus y I plus, no, minus yz square, minus yz square z minus y square z k minus y square z k. Okay, this is given function f. Clear? So line integral पहले सॉल्व कर लेते हैं। f dot dr तो तुरंत आ जाएगा, है ना। और क्या गिवन है, सरफेस, एंड s is
surface upper half of sphere surface of upper half of sphere x square plus y square plus z square equals to 1. Clear है? Now लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल सॉल्व करते हैं. क्लोज कर सी एफ डॉट डी आर डायरेक्ट लिख रहा हूं. लेफ्ट हैंड साइड एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू इंटीग्रल सी. कोई ना कोई मेरे को बताओ अभी क्या लिखूं. डॉट प्रोडक्ट होने से क्या आ जाएगा? हेलो, डॉट प्रोडक्ट होने से एफ डॉट डी आर होने से यहां क्या लिखना पड़ेगा? हेलो, टेल मी. सिंपल इंटीग्रेशन है. देखो कितना टाइम हुआ अभी, है ना, 1.25 घंटा हुआ है केवल. ओके, क्या होना है बताओ? एनीवन? 2x minus y dx. क्या होना है? इसके साथ dr का डॉट प्रोडक्ट मतलब इसके साथ dx, इसके साथ dy, इसके साथ dz. बस यही तो है. सो 2x minus y dx minus yz square dy minus y square z dz. बस ये हो गया. दिस इज लाइन इंटीग्रल. Where c is what? Here. Where c is, डायरेक्ट लिख देते हैं. Where c is, क्या होगा? c सर्कल होगा ना, क्योंकि xy प्लेन में ही तो है. अपर हाफ xy प्लेन में ही तो है. Where c is, xy प्लेन में z की वैल्यू 0, इसमें z की वैल्यू 0 लेना है. तो वेयर सी इज सर्कल. इस सरफेस का प्रोजेक्शन लेते हैं तो भी तो वही बनता है ना, नीचे वाला पार्ट. इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या बना? वेयर सी इज सर्कल. ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जेड इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड जेड इक्वल्स टू 0. अब इस सर्कल से लिमिट, ये जो इसके अलोंग लाइन इंटीग्रल करना है. सो लाइन इंटीग्रल करते समय, सॉल्व करते समय ना, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो ये दिख रहा है कि ये कर्व है, यहां पर z की वैल्यू 0 है. सो यहां पर z की वैल्यू 0 कर देते हैं. इस इंटीग्रल में z की वैल्यू 0 करोगे तो z इक्वल टू 0 यहां है, z इक्वल टू 0 यहां है. दैट मींस ये से दो पार्ट खत्म, केवल ये फर्स्ट पार्ट बचेगा. ओके, तो अगर फर्स्ट पार्ट बचेगा तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो रहा है? अभी यही लिख देते हैं, है ना, एकदम सिंपल तो हो जा रहा है. सो दिस इज इक्वल्स टू, ये जो मैं लिख रहा हूं ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन में? हाँ, तो क्या क्या हो जाएगा? ये जो लिमिट ओनली यही बचेगा ना, 2x minus y dx. ये तो बचा, बस यही बचा ना. अब ये सर्कल है, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज कर लेते हैं. देखो लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए भी बहुत सारे शॉर्टकट टेक्निक भी रहता है ना. यहाँ पर लाइन इंटीग्रल इज अलोंग दिस सर्कल, तो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू cos थीटा y इक्वल टू sin थीटा ले लो. इधर 1 है ना, सो इट कैन बी रिटेन एज, यहां पर टेक व्हाट, x इक्वल्स टू cos थीटा y इक्वल्स टू sin थीटा. देखो अगर x इक्वल टू cos थीटा लेंगे, y इक्वल टू sin थीटा लेंगे, तब भी ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा. ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया, थीटा पैरामीटर हो गया, और थीटा की वैल्यू सर्कल में कहीं भी पॉइंट लो तो कितना राउंड लगाएगा? थीटा की वैल्यू क्या होगा? लिमिट. अगर हम इसको
x की जगह y की जगह cos थीटा sin थीटा रख दिया जाए यहाँ पर, x की जगह cos थीटा y की जगह sin थीटा यूज कर रहे हैं। तो जैसे ये हम यूज करेंगे तो फिर थीटा की लिमिट निकालना पड़ेगा। तो अगर इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बना दिया जाए तो थीटा की लिमिट क्या होगा, एक सर्कल में थीटा कितना राउंड करेगा, ये यही तो है, यही तो है, यहाँ से यहाँ तक राउंड करेगा 0 to 2 पाई। सो लिमिट क्या हो जाएगा, अगर x की जगह हम क्या ले लें cos थीटा, y की जगह क्या ले लें sin थीटा, तो लिमिट हो जाएगा 0 to 2 पाई 2 cos थीटा माइनस sin थीटा d थीटा। नो d x इक्वल टू cos थीटा लिया ना, तो क्या बन जाएगा dx इक्वल टू माइनस sin थीटा d थीटा। यहां पर जो लिख रहा हूं दिख रहा है ना, क्या लिखा हूं, लास्ट लाइन बताओ, टेल मी। dx equal to माइनस sin थीटा d थीटा ना, सबकी स्क्रीन में दिख रहा है ना वो, क्योंकि x को cos थीटा लोगे तो डिफरेंशिएट करो तो dx इक्वल टू माइनस sin थीटा d थीटा, तो ये dx की जगह माइनस sin थीटा d थीटा, x की जगह cos थीटा, y की जगह sin थीटा, और लिमिट हो जाएगा थीटा की लिमिट 0 to 2 पाई। सो दिस इंटीग्रल कैन बी इवैल्यूएटेड। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, है ना, f डॉट dr की वैल्यू यही चीज क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 2 पाई 2x माइनस वाई था ना, 2x माइनस वाई, सो 2 cos थीटा, x की जगह cos थीटा माइनस y की जगह sin थीटा, ये हो गया, और dx के जगह पे माइनस sin थीटा d थीटा, ये, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0 to 2 पाई sin थीटा से इंटू कर रहे हैं sin स्क्वायर थीटा, ये अंदर इंटू कर रहा हूं sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालो, सब लोग पढ़ने बैठे हो ना, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालो जल्दी। 0 to 2 पाई sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होना है, फंक्शन क्या होगा इस इंटीग्रल की वैल्यू, हेलो, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड ही निकाल रहा हूं, इतना टाइम लग जा रहा है ना, यही क्वेश्चन सॉल्व होगा अभी। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 sin थीटा cos थीटा को, हेलो, तो sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन तो पता है क्या होता है, cos sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और ये sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है। चलो एक पार्ट और बचेगा, इसके बाद वो भी फटाक से हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, आज हो जाएगा आराम से। अभी कितना हुआ, 1.5 घंटे के आसपास हो रहा है ना, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला राइट हैंड साइड। ओके, सो यहाँ इसको हटा दे रहा हूँ पहले, है ना, क्योंकि आगे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकल जाए पहले। सर पाई क्या बोले, हेलो, देखो अगर बुक रखे हो, बुक में दिख रहा है पाई, बट आया कैसे, क्योंकि बुक में ना करता नहीं है, ग्रेवाल में बहुत कम करता है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते बन जाएगा। पहली बात ये है, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ देखो sin 2 थीटा है, इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, पता है, लिमिट लगा देना है, 2 पाई है। इसका क्या किया हो, इसका क्या किया हो, हाँ वही 4 5/2 sin स्क्वायर थीटा लिखा।
हाँ वो तो बुक में लिखा है, बट कैसे हो रहा है? 4 क्यों कर रहे हैं? सर डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाना है। इवन फंक्शन है sin स्क्वायर थीटा, ये क्या है? 2 बार लगा। इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है, क्या होगा तो इसमें 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यस सर। 2 बाहर आ जाएगा, 0 to पाई होगा, फिर एक बार लगाओगे 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यही बोल रहे हो ना? यस सर। और फिर इसका क्या होना है? सर sin 2 थीटा होगा सर, उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे cos 2 थीटा बाई 2 माइनस भी जाएगा सर। इसमें ना ये जो बुक में किया है, देखो यहाँ पर अगर ग्रेवाल की बुक रखे होगे ना, वहाँ पर देखना एक जगह x इंटू 0 किया है, प्लस 4 इंटू इतना किया है, वो कमी स्प्रिंट टाइप का लग रहा है। बट इंटीग्रेशन जो अभी बोल रहे हो वही होना है। एक काम करना है, इसको क्या करना है, sin 2 थीटा करना है, ये लिमिट को यहाँ ले आना है, और यहाँ पर वही जो बोले हो 2 टाइम्स उसको अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला नहीं लग रहा है? इवन वाला नहीं लग रहा है। 0 to 2a में f 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx वाला लग रहा है यहाँ पर, उससे 4 टाइम्स हो सकता है। और फिर यहाँ भी आने वाला है, वहां भी इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2 थीटा आएगा, cos 2 पाई 4 पाई, वो जो cos का वैल्यू, और इस पूरा एडजस्ट करोगे तो पाई आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है ना, बिकॉज ये अभी इस स्टेज में हम लोग चल रहे हैं कि ये सिंपल सा इंटीग्रेशन यू कैन डू। ये सपोज करता है, बुक वाला आगे लिख देता है जनरली, है ना। सो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, पाई। ओके, सॉल्व कर लेना इसको, है ना। दिस इज इक्वल्स टू पाई। नाउ हमको क्या निकालना है अभी, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए कर्ल एफ भी चाहिए, एन कैप भी चाहिए, ये सब कुछ करना है अभी। सो नाउ कर्ल एफ, फटाफट बताओ कर्ल एफ। कर्ल एफ मींस क्या होता है, डेल क्रॉस एफ। डेल क्रॉस एफ की वैल्यू कैसे निकलता है, आई जे के, और यहां पर डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड, और एफ का पोर्शन 2x माइनस वाई आई, नॉट आई, 2x माइनस वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर जेड। इसकी वैल्यू निकालना है, यही तो था। ये कंपोनेंट लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, डेल क्लास एफ निकालते हैं। तो ये इसके जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, ये अभी जब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, सरफेस हमारा ये सर्कल है, ओके सॉरी स्फीयर है। नाउ ये कर्ल एफ निकालना पड़ेगा पहले। तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा, आई डॉट आई इंटू दिस, ये y के रेस्पेक्ट में यहाँ करते हैं, फिर z के रेस्पेक्ट में माइनस करते हैं। सो i का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल ऑफ y के रेस्पेक्ट में, सो माइनस 2yz, माइनस 2yz, और ये माइनस माइनस प्लस 2yz i, ये पोर्शन पूरा 0 हो गया, खत्म। उसके बाद i के बाद j वाला पोर्शन आएगा, ओके। देन j में क्या आना है, j this over this 0 minus this over this 0, j plus k of this over this 0 minus this over this minus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 k, ये आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, के आ गया, ये के, आई जे के, ओनली के आ गया। कर्ल एफ इक्वल्स टू के, कर्ल एफ इक्वल्स टू के आ गया। नाउ एन कैप, एन कैप की वैल्यू क्या आना है, हेलो कोई बता सकते हो, हेलो एन कैप, एंड एन कैप इक्वल्स टू, एन कैप की वैल्यू, एन कैप की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पर ना सॉल्व हो जाएगा इजीली, बिकॉज कर्ल एफ की वैल्यू क्या आया, क्या आया ना, और वो जो सरफेस कर्ल एफ का जो सरफेस इंटीग्रल जो राइट हैंड साइड है, कर्ल ऑफ ये आ गया,
इसको सॉल्व इधर करते हैं। कर्ल एफ की वैल्यू क्या है, के। ओके, कर्ल एफ आने के बाद अभी यहां पर सॉल्व करना है, तो क्या लिखना है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, इसमें एस कर्ल एफ डॉट क्या होता है, कर्ल एफ डॉट एन कैफ ds। सो कर्ल एफ की जगह हम क्या लिखें, s कर्ल एफ की जगह पे क्या लिखना है, हेलो, के लिखना है डॉट एन कैप। एन कैप इसलिए निकाला नहीं है, एन कैप निकाल भी सकते हैं, सॉल्व भी हो जाएगा, बट के डॉट एन कैप यहां पर आ गया। ds को, ds की वैल्यू अभी फिलहाल ds को यही रख दिया। तो आगे जाकर आप क्या लिखना है, इस रीजन को अगर हम नाम दे दें E, आर रीजन दे दें, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस ऑन द XY प्लेन, ये रीजन आर है, ये जो सरफेस का प्रोजेक्शन XY प्लेन पे ले रहे हैं, तो XY प्लेन पे अगर सरफेस लोगे तो यहां पर क्या आएगा, आर, सर्कल का जो पार्ट है, और ये क्या है, के कैप डॉट एन कैप ds की वैल्यू। अब प्रोजेक्शन लिया है XY प्लेन में, तो यहाँ इस ds की वैल्यू क्या लिखना है, यहां पर बताओ, ds इक्वल्स टू dx dy अपॉन k कैप डॉट n कैप, k कैप डॉट n कैप। अब ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा बस, इसीलिए इस n कैप की वैल्यू को वो फिर डेल फाई वगैरह करके निकाले नहीं, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जा रहा है। अगर ये कैंसिल नहीं होता तो फिर सॉल्व करना पड़ता है, एन कैप भी निकालते हैं, फिर सॉल्व होता है, उसके बाद सॉल्व होता है। तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी आता है। ओके, सो दिस टू क्वांटिटी आर कैंसिल आउट। नाउ क्या बचा, डबल इंटीग्रेशन आर, डबल इंटीग्रेशन आर, ये खत्म, ds dy। कोई बता सकते हो ये क्या पार्ट है, क्या चीज, क्या कौन सा जगह है, डबल इंटीग्रेशन याद करो, और नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है, ये जो रीजन है वो सर्कल है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर एरिया। बिकॉज डबल इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग डबल इंटीग्रल करते हैं और ds dy लिखते हैं, ये क्या होता है, जो भी रीजन है उसका एरिया होता है ना, जो भी रीजन होता है उसका एरिया होता है यार। आर जो रीजन है वो किस, ये नीचे वाला सर्कल है, इस सर्कल है, तो सर्कल का एरिया है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर लिमिट निकाल के सॉल्व करेंगे ना तो भी आ जाएगा, बट यू कैन राइट डायरेक्ट, बिकॉज ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ दिस रीजन, एरिया ऑफ आर, आर मीन्स क्या, सर्कल, और रेडियस कितना है, 1 है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई 1 स्क्वायर, पाई है। सो लिख सकते हैं यहां पर डायरेक्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट R, that is equals to what, pi 1 square equals to pi 1 मतलब रेडियस है। ये हो गया राइट हैंड साइड। thus we get left hand side and right hand side are equal, so Green's theorem verified, Stokes theorem verified। thus we get, ये लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस स्टोक्स थ्योरम is verified। समझ में आया वेरिफिकेशन, हेलो, वेरिफिकेशन ओके ना, यस सर। तो वेरिफिकेशन समझ में आ गया, तो उसमें भी लाइन इंटीग्रल निकालना है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है, बट सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए ये जो स्टोक्स थ्योरम में कर्ल एफ निकालना है, एन कैप निकालना है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है, ds की वैल्यू लिखना है, प्रोजेक्शन लेके वहां से लिमिट निकालना है, सॉल्व करना है, तो दोनों अगर इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो गया। एंड इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज कर लिया जाए, तो लाइन इंटीग्रल ना निकाल के सीधा सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल दो तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगा, वो सब एप्लीकेशन है। ओके, सो अभी क्लास खत्म करते हैं क्योंकि
टाइम ज़्यादा हो गया, और पढ़ाएंगे तो बोर हो जाओगे तुम लोग, है ना। ओके, असाइनमेंट सब लोगों ने जमा नहीं किया ना? हेलो सब लोग, मैंने आज देख रहा था अभी 22 लोगों ने जमा किया है, क्योंकि एक असाइनमेंट और देने वाला हूँ। 9 लोगों ने जमा नहीं किया अभी तक, 22 लोगों ने दिया है। ओके, सो एक क्वेश्चन और करने के लिए एग्री हो कि अभी क्लोज करें मीटिंग? हेलो, जो तुम लोग बोलोगे। चलिए सर मीटिंग क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि थक जाते हैं, बात सही है ना। ओके, सो नाउ क्लोज कर रहा हूँ ना, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।